Okay, so let us start with the list of all the formulae from this chapter. Yes, what are the formulae from this chapter? Okay, so first of all, we have the formula in this chapter that is about the pressure exerted by the gas, isn't it? गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास है, जो कि प्रेशर P is always equal to याद है सभी को, P is equal to 1/3 into capital N into M upon V into C square और CRMS square. CRMS मतलब RMS velocity, ठीक है. तो और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है प्रेशर का? P is equal to 1/3 again into capital M, that is the total mass of the gas divided by volume into CRMS का whole square. और एक फॉर्मूला हमारे पास है प्रेशर का जो कि 1/3 into rho CRMS square. Rho stands for density, remember. Okay, what else? अच्छा, इसमें इन सबका यूनिट पता है क्या? Just discuss once. What are the units? न्यूटन इस प्रेशर का यूनिट क्या है बताओ? पास्कल. पास्कल एक तो चलो पास्कल एक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. yes. और what is the conversion factor between Pascal and Newton per meter square? कौन बताएगा? 1 Pascal is Very equal good. Very good. 1 Newton per meter square is is equal same as 1 Pascal. Okay, और कौन सा यूनिट प्रेशर का बताओ? बार. बार. Yes, 1 bar is equal to 10⁵. 1.013 into 10⁵ Newton per meter square. It's also called 1 atmospheric pressure, right? So it is also denoted by 1 ATM. ATM से भी डिनोट करते हैं उसको. और क्या है प्रेशर का यूनिट? जल्दी बोलो, दो ही है, तीन ही है? टॉर सुना है कभी? टॉर याद रखो, टॉर भी प्रेशर का यूनिट है. What is the relationship between this? What is torr? 1 torr is equal to how much? Actually, 1 torr is 1 upon 7/60th part of our atmospheric pressure. So 1 torr is equal to 1 upon 760 times of an atmospheric pressure. मतलब ही बार. ये रिलेशन है, मतलब 1 bar is equal to 760 torr, ऐसा भी बोल सकते हैं.
तो उससे तुमको कन्वर्जन फैक्टर भी मिल जाएगा आराम से। ठीक है, बाकी फिर किलो पास्कल, मिली पास्कल, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि नहीं, क्योंकि किलो मतलब 1000, मिली मतलब 10⁻³ ये सब तुमको पता है ऑलरेडी। ओके ठीक है। अभी एक बात कि प्रेशर निकालने के लिए कभी कभी इनडायरेक्टली हमको तरीका दिया जाता है। कभी कभी प्रेशर निकालने के लिए बैरोमेट्रिक प्रेशर यूज किया जाता है, मतलब बैरोमेट्रिक प्रेशर दिया जाता है और हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम दिया जाता है, जो कि P = H/dg इस फॉर्मूला से हमको निकालना जरूरी होता है, जहाँ पे H मतलब हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन द बैरोमीटर and D is going to be the density of mercury, which is, you must know it, to be equal to 13,600 kilogram per meter cube, and G is obviously the gravity, that is 9.8 meter per second square. Okay, तो ये हमको याद रखना है। दूसरी बात, ये N क्या है यहाँ पे, कैपिटल N मतलब क्या है? It's number of molecules, remember, and it has no unit, we know that. And what is the this small m here? this small m मतलब क्या है यहाँ पे? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल का जो मास है वो यहाँ पे स्मॉल m से डिनोट किया हुआ है, याद रखो ठीक से, ये लर्न करना है सभी को। कैपिटल N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स and small m is going to be the mass of each molecule. And what is capital M, by the way? Is going to be the total mass of the gas. मास गैस का जो मास है पूरा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल M, and obviously it is measured in kilogram or gram, and we also know that 1 kilogram is equal to 1000 gram, or if we want to convert kilogram into gram, we can know that 1 gram is equal to 10⁻³ kilogram. Okay, वॉल्यूम का क्या है यूनिट? ये मतलब वॉल्यूम है कि नहीं? वॉल्यूम का यूनिट कौन सा है बताओ? रो। मीटर क्यूब। यस, स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर क्यूब है, नो डाउट, बट व्हाट इज द SI unit, sorry, CGS unit of meter volume? Centimeter क्यूब। Yes, what is the conversion between them? 1 centimeter cube is equal to how many meter cubes? कौन बताएगा? 10⁻⁻⁶ कौन बोला? लोकेश, वेरी गुड। 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब, याद रखो, क्योंकि 1 centimeter itself is going to be 10⁻² meter. So if we cube both sides, then we get this 10⁻² the whole cube, which comes out to be 10⁻⁶. Okay, and what is the relationship between liter and meter cube? 1 liter is equal to how many meter cube? 10⁻³ meter cube. 10⁻² plus 3 या -3? -3 meter cube, याद रखो ठीक से। 1 liter is equal to 10⁻³ meter cube. और अच्छा, ये तो तुमको पता है ऑलरेडी, 1 milliliter is already always equal to 10⁻³ liter. तब लीटर का 1000th पार्ट मतलब मिलीलीटर होता है, ठीक है। बट ये किसको पता है कि 1 milliliter is also same as 1 centimeter cube only, जिसको सीसी भी लिखते हैं कभी कभी, सीसी याद है ना? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर सेम ही होते हैं, कोई फर्क नहीं उनके बीच में, याद रखो ये भी ठीक से, ठीक है। और बाकी बचा डेंसिटी, तो डेंसिटी का क्या है यूनिट? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यस, एंड व्हाट इज द सीजीएस यूनिट? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड टेल मी व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन देम? One gram per centimeter cube is equal to how many kilogram per meter cube? 10⁻³ -3 या +3? कौन बोला ये? ऋत्विक, +3।
1 gram per centimeter cube is going to be 10 raised to 3 kilogram per meter cube. ग्राम और किलोग्राम के जैसा नहीं है वो, देखो ठीक से, एक ग्राम जो है 1 gram is actually equal to 10 raised to minus 3 kilogram, no doubt. But if we divide it by centimeter cube, and here we will have to divide it by meter cube only, तो इसलिए फिर वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करके देखो ठीक से, 1 gram is equal to 10 raised to minus 3 kilogram, but 1 centimeter cube is how much? ये 1 centimeter cube जो है वो तो 10 raised to minus 6 meter cube के बराबर है कि नहीं? तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो वो 10 raised to minus 6 ऊपर जाके 10 raised to plus 6 बनेगा, और 10 raised to plus 6 minus 3 will become plus 3 actually, and hence here it is 1 gram per centimeter cube equal to 10 raised to 3 kilogram per meter cube. ये सभी लिख के लो ठीक से, लर्न करने हैं और हम ठीक से. And what is CRMS? RMS velocity यूनिट क्या है उसका? मीटर पर सेकेंड. per second. ओके, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला बताओ. आइडियल गैस इक्वेशन PV is equals to nRT. PV is equal to N. nRT. अच्छा, इसमें P तो हमने देख लिया, V देख लिया. R मतलब क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. Gaseous यूनिट क्या है? constant. यूनिट क्या है? 0.314 8.314 क्या? जूल पर मोल Joule per. जूल पर मोल केल्विन मोल केल्विन. केल्विन. ओके, याद रख लिख से. तो ये बात. और N मतलब क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे, याद है? हाँ. कौन N बताएगा? is N upon M naught. अरे सभी ये ऑन करो, वीडियो ऑन करो सभी अपने, और बोलो जरा फटाफट. मेरे को लर्न करने के फॉर्मूले. mass N upon upon molar N mass. हाँ, mass of the gas Upon molar mass. molar mass of the gas is called as the number of moles. दूसरा बताओ. upon N naught. Number of molecules upon Avogadro's Yes. number. Yes, number of molecules upon Avogadro's Avogadro's number. N upon N naught. और तीसरा बताओ. V upon V naught. Yes, V volume upon molar volume. How much is the molar volume? 22.4. कितना? 22.4. क्या? DM. DM cube. Correct. DM cube or liter we can say. Yes. Okay, next is number of moles का SI unit क्या है? बोलो मोल. MO. Mole is not the SI unit of number of moles. Number of moles का SI unit क्या है? Mole. अभी मैंने क्या बताया? ऐसा यूनिट नहीं होता. सही नहीं होता है? अरे ये ना, फिर रेशियो तो है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ मोल्स को यूनिट तो है, ऐसा यूनिट है. डायमेंशंस भले नहीं है, बट यूनिट तो है. मोल किलोमोल याद रखो. ऐसा यूनिट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज किलोमोल. भूलो मत. एंड CGS यूनिट इज एक्चुअली मोल. ओके, किलोमोल एंड मोल ये दोनों यूनिट्स है उसके. एक ऐसा यूनिट है और एक CGS यूनिट है. तो ऐसा यूनिट उसका किलोमोल है, ना कि मोल. ओके, चलो आगे बढ़ो. उसके बाद कौन सा फॉर्मूला किया था हमने इस चैप्टर में? RMS वेलोसिटी याद है? What is the formula for RMS velocity of gas molecules? CRMS is always equal to root of 3RT upon M naught. प्रूव किया था नहीं हमने? इसमें M naught माना मोलर मास है गैस का, और T मतलब क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक है, तो याद रखो से एब्सोल्यूट टेम्परेचर is going to be 273 plus Celsius temperature. Next,
आगे बढ़ो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस 3/2 n kbt यस 3/2 n kbt क्या n kbt n kbt वो तो इसका हो गया एक मोल का मॉलिक्यूल का हो गया ना वो गैस का हाँ 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 पूरे गैस का राइट राइट पूरे गैस का वो बराबर आएगा और एक ये फॉर्मूला याद रखो ठीक से कि 3/2 pv ये देखो बेसिक फॉर्मूला जो है ना वो 3/2 pv है ठीक है ये हमने प्रूव किया था याद है आपको pv इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस ये हमने प्रूव किया था तो इसको यूज करके हमने ये देखा था कि काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ pv ओके अभी इससे आगे जाके मुझे बताओ pv को हम आराम से nRT लिख सकते हैं आराम से राइट इसलिए हाँ, टोटल सर। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो 3/2 इंटू nRT ये भी तो हो गया n मतलब यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मोल्स है नंबर ऑफ मोल्स और दूसरे फॉर्म में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि the total kinetic energy of the gas is going to be simply 3/2 times of n times of kb into t आइडियल गैस इक्वेशन दो है हमारे पास एक pv is equal to nRT दूसरा pv is equal to nkbt तो दोनों यूज करके हमको ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले मिलते हैं चलो ठीक है अभी मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का तो मिल गया काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या मिलेगा हमको बताओ द काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना होगा 3/2 kbt नहीं ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है ना ये नंबर ऑफ मोल्स है देखो इधर ये स्मॉल n जो है ना इट स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स तो अगर हमको काइनेटिक एनर्जी पर मोल चाहिए तो उसके लिए इस n को नीचे लेके जाने का तो बनेगा क्या सिंपली 3/2 RT समझा कैसे ये बन गया हमारा काइनेटिक एनर्जी पर मोल और अगर पूछा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल और कैन से काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल तो फिर क्या करने का 3/2 तो kbt यस तो ये कैपिटल N जो है वो फिर नीचे डालने का होगा तो उससे वो बन जाएगा सिंपली 3/2 इंटू kb इंटू t यस ओके और अगर पूछा कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास अभी बताओ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ गैस तो इसको मास से डिवाइड करना पड़ेगा बट मास इज ऑलवेज इक्वल टू देखो 3/2 इंटू nRT ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी उसको हमको डिवाइड करना है मास से राइट लेकिन हमको पता है ऑलरेडी कि मास जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास होता है राइट तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो देखो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास भी तो है कि नहीं तो इसको अगर थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमको मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास मिल जाएगा और अगर वो डाल देंगे यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इसमें से नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या सिंपली 2 इंटू RT अपॉन m0 मतलब मोलर मास तो ये हमको मिल रहा है तो 3/2 इंटू RT अपॉन m0 दिस इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास रिमेंबर चलो आगे बढ़ो और क्या फॉर्मूला इसके इस चैप्टर के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर तो इतने ही है ना फॉर्मूले शायद हाँ उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं कि सीपी का फॉर्मूला क्या है सीवी का फॉर्मूला क्या है बताओ बराबर कैपिटल सीवी इज इक्वल टू du अपॉन ndt याद है ना और कैपिटल सीपी का बताओ dq अपॉन ndt और SV का बताओ SV मतलब प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट which is du upon m into dt और SP का
dq dq upon upon m dt. m dt. m मतलब मास है। अच्छा, और एसवी और सीवी में क्या रिलेशनशिप है बताओ? एसवी इज इक्वल टू CV upon molar mass. Similarly, SP is also equal to CP upon molar mass. Okay, or we can write it as CV is going to be equal to M naught into SV, and at the same time CP is going to be equal to M naught into SP. And what is the relationship between CV and CP? Tell me first. CP minus CV CV is equal to R, where R is the universal gas constant again. And what is the relationship between SV and SP first? SP minus SV is equal to, bolo फटाफट, R upon M naught, which is denoted by small r, that is specific gas constant. याद है ना? तो इसको SP minus SV is equal to small r ऐसा भी लिख सकते हैं. This small r is also called as the specific gas constant. Okay. आगे इन सब के यूनिट्स पता है क्या? What is the SI unit of CP or CV? SI यूनिट क्या होगा उनका? याद रखो फिर से, CP और CV इनको दो SI यूनिट्स और दो CGS यूनिट्स भी है. पता है कौन से? देखो, एक तरफ तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे SI यूनिट्स. तो SI यूनिट्स कौन से है वो देखो ठीक से. और दूसरी तरफ CGS यूनिट उनके. और क्योंकि SI यूनिट्स में दो होते हैं, एक होता है मैकेनिकल यूनिट्स और दूसरे आते हैं थर्मल यूनिट्स. तो मैकेनिकल SI यूनिट कौन सा है? जूल पर किलो मोल केल्विन. और थर्मल में कौन सा आएगा? किलो कैलोरी पर किलो मोल केल्विन. ओके. सीजीएस यूनिट कौन सा है इसका मैकेनिकल में? अर्ग पर मोल केल्विन. एंड सीजीएस यूनिट इन थर्मल सिस्टम simply calorie per mole Kelvin. Remember. But now it's a coincidence here that ये किलो और ये किलो कैंसिल हो जाता है और उसकी वजह से ये दोनों यूनिट सेम ही बन जाते हैं, जो मैंने लास्ट 11th स्टैंडर्ड में भी एक्सप्लेन किया था. अगर थर्मल एक्सपेंशन का चैप्टर तुमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अगर 11th स्टैंडर्ड में अटेंड किया है तो उसमें हमको पता होगा कि किलो कैलोरी पर किलो मोल केल्विन और कैलोरी पर मोल केल्विन ये दोनों सेम ही बनते हैं. इनमें कोई रिलेशनशिप मतलब ऐसा कन्वर्जन फैक्टर कुछ भी नहीं है, वही है. और दूसरी तरफ यहाँ पे जब हम एसपी और एसवी के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे किलोमोल के बदले सिर्फ केजी आ जाएगा, केजी. तो उसको हम वो ऐसा ही पूरा टेबल नया बना सकते हैं जिसमें किलोमोल विल बी रिप्लेस्ड बाय किलोग्राम केजी एंड मोल विल बी जस्ट रिप्लेस्ड बाय ग्राम. याद रखो ठीक से, किलोमोल के बदले क्या डालना है हमको? किलोग्राम डालना है और मोल के बदले हमको ग्राम डालना है. तब जाके हमको ये एसपी और एसवी के यूनिट्स मिल जाएंगे आराम से. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. नेक्स्ट, सीपी का सीवी और सीपी के वैल्यूज जो हमने डिराइव किए थे मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए. अच्छा, पहले मुझे बताओ गामा मतलब क्या? एडियाबेटिक कांस्टेंट. उसका फॉर्मूला क्या है? CP upon CV. CP upon CV. देखो याद रखो ठीक से, CP upon CV is gamma and CP minus CV is R. देखो मतलब CP और CV के बीच में दो रिलेशनशिप्स आ गए कि नहीं? उनका डिफरेंस R के बराबर होता है और रेशियो उनका गामा के बराबर होता है. और इसको यूज करके हम एक डायरेक्ट रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं. पता है कौन सा? देखो
यस, यहाँ पे अगर हमने Cp का वैल्यू इस तरह से लिखा गैमा इंटू Cv, तो यहाँ पे अगर हम डाल देंगे ना Cp का वैल्यू, तो हमको मिल जाएगा गैमा इंटू Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R। जिसको और सिंप्लीफाई करेंगे Cv को कॉमन निकाल के, तो गैमा Cv जाएगा बाहर, गैमा माइनस 1 बचेगा अंदर, इज इक्वल टू R मिलेगा। और इससे हमको डायरेक्ट Cv का वैल्यू मिल जाएगा। Cv विल बिकम इक्वल टू R अपॉन गैमा माइनस 1। देखो Cv का वैल्यू मिल गया, एंड Cp का क्या मिलेगा वैल्यू हमको। Cp तो देखो यहाँ पे Cp मतलब गैमा टाइम्स Cv होता है कि नहीं, तो अगर Cv मिल गया ऑलरेडी, तो उसको सिर्फ गैमा से मल्टीप्लाई करो, तो बनेगा गैमा इंटू R अपॉन गैमा माइनस 1। दिस विल बिकम द वैल्यू ऑफ Cp डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ गैमा। सो रिमेम्बर, अगर हमको गैमा पता है तो हम तुरंत Cv भी निकाल सकते हैं और Cp भी निकाल सकते हैं। आप तो वैसे भी पता होता है कि नहीं। तो अभी मुझे बताओ Cp मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है। अच्छा, नहीं तो ऐसा हम करेंगे, देखो ठीक से एक टेबल ही बनाएंगे जिसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी आराम से, ठीक है। देखो ठीक से, सबसे पहले हम बात करेंगे मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के बारे में, उसके बाद फिर बात करेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में। उसमें भी एक होता है नॉन रिजिड, राइट, रिजिड और नॉन रिजिड डायटोमिक होते हैं नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बात करेंगे पहले रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब नॉन वाइब्रेटिंग, ओके, नॉन वाइब्रेटिंग टाइप का डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। और तीसरी तरफ हम बोलेंगे वाइब्रेटिंग वाला, मतलब ही उसको बोलते हैं नॉन रिजिड, नॉन रिजिड, और वो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल। can call it as vibrating। चलो बोलो फटाफट, what is degree of freedom of monoatomic molecule? 3. 3, very good। अच्छा, उससे एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना बनता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, यस, 3/2 NaKBT। 3/2 KBT, बराबर कि नहीं। तो देखो, अच्छा अभी पैरेलल ले जाएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का बताओ कितना है, 3। रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल का बताओ कितना है, 5, वेरी गुड। एंड नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 7, करेक्ट है। एंड अभी उसके साथ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी जोड़ देंगे। चलो, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 9। आवाज मत करो शशि भूषण, सॉरी सर, गलती से हो गया माइक पास में। 9। बोलो फटाफट, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 3 + 3 6, 6 + 2f, वेरी गुड। ओके, अभी यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है फटाफट। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का कितना होता है, 3/2 KBT। वेरी गुड, 3/2 kb × t। चलो, डायटोमिक मॉलिक्यूल का रिजिड वाले 5/2 5/2 kb t। फिर नॉन रिजिड वाले 7/2 7/2 kb t। और पॉलीएटॉमिक वाले का, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3 + f × r, नहीं RT। KBT एक मॉलिक्यूल का चल रहा है, वो मोल का हो गया ना, एक मोल का हो गया वो RT। ठीक है, आगे बढ़ो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल 3/2 RT। यस,
3/2 RT for monatomic molecule. Here it is going to be 5/2 RT for diatomic rigid. Diatomic non-rigid 7/2 7/2 7 by RT and RT. 3 plus F into RT. तो देखो मोल बोला तो R आएगा और मॉलिक्यूल बोला तो Kb आएगा. हाँ? KB. याद रखो. आगे बढ़ो. What is the value of Cv for monatomic molecule? 3/2 R. Yes, 3/2 R. Correct. R. And what is the value of Cv for diatomic one? 5/2 R. 5/2. 5/2 R. 7/2 R. Right? और यहाँ पे आएगा 3 plus F 3 plus F. to R. ये सिंपल सी बात. अच्छा इसमें F क्या है पता है ना? F मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस. याद रखो ठीक से. अच्छा अभी आगे बढ़ो. Cp का वैल्यू बताओ फटाफट सबका. 5/2 R. 5/2 R. Yes, 5/2 R. This is 7/2 R. 7/2 R It is 9/2 R and 4 plus F into R. ठीक है नहीं? और गैमा का बताओ अभी. 5/3. 5/3 Yes. 5/3. So gamma it is 5/3 for monatomic, 7/5 for diatomic, 9/7 for rigid, non-rigid, and 4 plus F upon 3 plus F for polyatomic. देखो कितना सिंपल टेबल है. इसमें सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे. देखो इस पेपर पे जो भी न्यूमेरिकल्स अगर पूछेंगे ना तो वो तुमको इससे क्लियर कट समझ में आएगा क्या पूछा है और उसके लिए कौन सा एग्जैक्टली फॉर्मूला आपको यूज करना है. चलो आगे बढ़ो. यस और क्या फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर आगे. रेडिएशन के अंदर आ जाते हैं ना अभी. चलो रेडिएशन के अंदर बताओ सबसे पहला फॉर्मूला क्या है. कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन व्हिच इज amount of heat absorbed upon amount of heat incident. Coefficient of reflection amount of heat reflected upon amount of heat incident. And coefficient of transmission again amount of heat transmitted upon amount of heat incident. And what is the relationship between A, R and T? A plus R plus T is equal to 1. and also that QA plus QR plus QT is going to be is equals Q. to Q. Yes. What is the radiant power? R. Amount of heat emitted per unit time per unit area. Barabar? And what is the formula for radiant power of perfectly black body then? Amount of heat emitted by perfectly black body per unit area per unit time. सिर्फ वो ब्लैक बॉडी के लिए बन गया बस खत्म. और what is the emissivity or coefficient of emission which is denoted by small e here. Ratio of radiant power. Yes, ratio of radiant power of any body to the Ratio of radiant power of perfectly black body. Perfectly boardwood. Correct. और क्या देखा इसमें हमने. Kirchhoff's law. Kirchhoff's law which tells us that A is equal to E. Okay. और Stephen's Rate law. of emission of heat. नहीं Stephen's law क्या बताता है बताओ पहले. Stephen's law. Emissive power of perfectly black body is proportional to the fourth power of absolute temperature. Yes. So emissive power of perfectly black body मतलब ही RB. RB is directly proportional to fourth power of T, absolute temperature. So is equal to sigma into T raised to 4 ये बन जाएगा. और नॉर्मल ऑर्डिनरी बॉडी का emissive पावर फिर कितना बनेगा.
E into sigma E into T into raised to 4. E मतलब उसका emissivity या coefficient of emission. अच्छा, इसमें थोड़ा यूनिट के बारे में बात करो. इसका Q का यूनिट क्या है? जूल मीटर स्क्वायर पर जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड. हाँ, R जो है, R का यूनिट बनता है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, which can also be written as, वो इक्विवेलेंट किसके साथ है? जूल पर सेकेंड मतलब वैट ना, तो वैट पर मीटर स्क्वायर, याद रखो. ओके, और चलो अभी आगे बढ़ो. ये R और RV के तो वैल्यूज हमको मिल गए. अभी मुझे बताओ, इस R को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे Q अपॉन AT से, 80. तो वो E सिग्मा T रेज़ टू 4 बन जाएगा, जिससे हमको रेट ऑफ इमिशन भी मिलेगा. रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट is going to be equal to AE E sigma T raised to 4. 4. This is called as rate of emission. Rate of Remember. emission. Okay. And what is the total amount of heat emitted? Q is equals to AE sigma T raised to 4 into time. Yes, small t. Yes, sir. Okay. And what is the formula for rate of loss of heat per unit area? देखो ठीक से, rate of loss of R. heat per unit area. It's equal to R minus R R naught. naught. Is going to be equal to A, नहीं A नहीं आएगा उसमें, E sigma into T raised to 4 minus T naught raised to 4, where T naught stands for the temperature of surroundings and T is the temperature of body itself. Okay, and what is the rate of loss of heat actually? R minus or not? वो R minus R naught तो पर यूनिट एरिया है ना. अभी हमको रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट चाहिए, पर यूनिट एरिया नहीं चाहिए, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो वो बन जाएगा A इंटू E इंटू सिग्मा इंटू T raised to 4 minus T naught raised to 4. Okay, so this is the formula for rate of loss of heat, and this is going to be the rate of emission of heat. See the difference. Rate of emission of heat में टेम्परेचर बॉडी का सिर्फ आता है, सराउंडिंग का नहीं आता है. और यहाँ पे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के अंदर सराउंडिंग्स का भी आता है, ठीक है, और बॉडी का भी आता है. डिफरेंस आता है उसके अंदर. चलो नेक्स्ट, फेज डिस्प्लेसमेंट लॉ. Phase displacement law, lambda max is equal to B upon capital T, or we can say lambda max into temperature Into capital T is equal to small b, and B here is equal to Benz constant. 0.9 Benz into 10 raised to minus 3 minus 3 meter Kelvin. Kelvin. Don't write it as Kelvin meter, otherwise it will become kilometer. And what is the value of Stephen's constant? Sigma 5.67 into 10 raised into 10 raised to minus 8 watt meter square Kelvin raised to 4. देखो याद रखने के लिए वैसे इजी है. 5, 6, 7, 8. इजी कि नहीं? 5, 6, 7, 8. चारों नंबर जो है वो सीरियल ऑर्डर में आ रहे हैं. देखो 5.67 into 10 raised to minus 8. 5, 6, 7, 8. खत्म. 5, 6, 7, 8 याद रखने का सिर्फ. वैसे तो वो दिया रहता वैल्यू. Sorry about it. Okay, so all these are the formulae, isn't it? या कोई है बचा हुआ?
Now we will say the numericals. ओके, टेक्स्ट बुक का भी देखो एक बार ठीक से, वैसे तो है मेरे पास उनके भी। ये दिख रहा है सबको? चलो ठीक है, so read these numericals one by one. Yes, we will try to solve them. Okay, first of all, read this numerical 11th one. Question number 11. Whatever it say, calculate the ratio of mean square root speeds of molecules of gas at 30 Kelvin and 120 Kelvin. Okay, तो देखो ठीक से यहाँ पे गैस का, एक ही गैस के जो RMS वेलोसिटीज है वो 30 केल्विन पे और 120 केल्विन पे कितना होंगे वो हमको ढूंढना है। देखो सिंपल सी बात है कि RMS वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है एक्चुअली रूट ऑफ 3RT अपॉन m नॉट, राइट। अभी जबकि यहाँ पे रेशियो ऑफ मीन वेलोसिटी हमको निकालना है, तो ये इस एक को हम बोलेंगे C1 जो कि बनेगा रूट ऑफ 3RT1 फर्स्ट टेम्परेचर के ऊपर का अपॉन m नॉट। अब जबकि गैस सेम है तो m नॉट तो सेम ही रहेगा और सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया है ना उन्होंने, तो दूसरे टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी बनेगा वो रहेगा C2 जो कि रूट ऑफ 3RT2 यहाँ पे आ जाएगा और बाकी गैस सेम है करके मास मोलर मास जो है वो फिर भी सेम रहेगा। इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लेंगे ना तो इससे हमको मिलेगा C1 अपॉन C2 जो कि यहाँ पे अभी देखो रेशियो लेंगे तो इसमें रूट रूट भी कंबाइन हो जाएगा कि नहीं, और जब रूट कंबाइन कर देंगे दोनों तरफ से तो यहाँ पे 3R कैंसिल हो जाएगा, m नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमको बचेगा क्या, सिंपली T1 अपॉन T2, करेक्ट है। जिसको हम लिख सकते हैं आराम से आगे चल के कि C1 अपॉन C2 विल बी इक्वल टू, अभी यहाँ पे T1 और T2 दोनों का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो T1 का वैल्यू कितना है 30 है, ये हमको केल्विन में चाहिए टेम्परेचर्स और ऑलरेडी केल्विन में ही दिए है इसलिए कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो करते बैठने के डिग्री सेल्सियस के अंदर। फिर यहाँ पे आएगा 120 एज इट इज, तो यहाँ पे 30 का फोर्थ मल्टीपल ही तो है ना 120, तो इसलिए यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा, 4 आ जाएगा और 1:4, लेकिन उसका रूट भी तो निकालना है, तो रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2। ये आंसर रॉन्ग है, 1/4 कभी नहीं आ सकता, वो आएगा 1/2 बिकॉज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर और टेम्परेचर का ही रेशियो 1:4 दिख रहा है, तो RMS वेलोसिटीज का जो रेशियो है वो तो 1:2 आएगा ना, 1:4 कैसे आएगा। मेक इट करेक्ट, टेक्स्ट बुक के अंदर करेक्शन करो, इट्स गोइंग टू बी 1:2। चलो पढ़ो नेक्स्ट वन, ये देखो नेक्स्ट वाला 12th वाला पढ़ो एक बार फटाफट। 2 vessels A and B are filled with the same gas where volume, temperature and pressure in the vessel A is twice the volume, temperature and pressure in the vessel B.
calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A to the gas in vessel B. ओके देखो ठीक से अभी दो वेसल्स है हमारे पास. सपोज ये फर्स्ट वेसल है और उन्होंने दिया हुआ है कि वेसल ए का जो वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर सब डबल है बी के हिसाब से. तो ये बी का जो वॉल्यूम है वो आधा होगा ना उसके. तो ये हो गया हमारा बी वेसल और ये है हमारा ए वेसल. तो जो कंडीशन उन्होंने दिया है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं आराम से. देखो जब उन्होंने दिया है कि वॉल्यूम ऑफ वेसल ए इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वेसल बी, ये उसके अंदर इंक्लूडेड है. तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि बी ए मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी बी. दूसरा जो कंडीशन दिया है उससे क्या हमको मिलेगा बताओ. टेम्परेचर के बारे में भी तो वही बोला है ना उन्होंने. तो टेम्परेचर ऑफ वेसल ए इज गोइंग टू बी डबल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ वेसल बी, जिससे हमको मिलेगा टी ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी बी. और प्रेशर के बारे में भी वही बोला है. तो पी ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी बी. अभी हमको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन का रेशियो हमको निकालना है. एन ए इज टू एन बी हमको निकालना है. तो ठीक है, अभी यहाँ पे हम कौन सा आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे बताओ. या तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाला यूज करेंगे या पी वी इज इक्वल टू एन के बी इंटू टी, ये वाला आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे. दूसरा वाला बेटर होगा कि नहीं, क्योंकि हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है और ये एन माना क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं. इसलिए अगर हम ये आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल यूज इट फॉर फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट वेसल सपोज. तो इस फर्स्ट वेसल में अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमको, तो बनेगा पी ए इंटू वी ए इज इक्वल टू कैपिटल एन ए इंटू के बी. अभी बी मतलब वो ये बी नहीं है, के लिख देंगे उसको चाहिए तो. चलो के इंटू टी. और दूसरे इसके लिए अगर यूज करेंगे तो पी बी 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 एन बी के बी इंटू टी. टी को भी तो ए और बी जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, वो भी तो अलग अलग है. अच्छा अभी क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा और ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारा. तो इन दोनों इक्वेशंस का क्या करेंगे, ये सब दिया हुआ है देखो वैल्यूज. हाँ पी ए और एन ए के बदले और टी ए के बदले वैल्यूज डाल सकते हो. बट बिलीव मी रेशियो लेने से बहुत फायदा होगा. देखो क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल्स के फॉर्म में ही दिया है ना, तो रेशियो अगर ले लेंगे ना तो हमको ये मिलेगा इधर पी ए अपॉन पी बी डायरेक्ट, राइट, और इनटू वी ए अपॉन वी बी, इस तरफ एन ए अपॉन एन बी, और के तो कैंसिल हो जाएगा, और इधर टी ए अपॉन टी बी. देखो ठीक से सारे रेशियोज मिल गए. अभी सिर्फ वैल्यूज डालने हैं. देखो पी ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी बी, मतलब ये पी बी अगर नीचे जाएगा तो पी ए अपॉन पी बी कितना बनेगा, 2 बनेगा. और कितना बनेगा, तो इसलिए इसको डाल देंगे 2. तो ये पी ए अपॉन पी बी के बदले 2 आ गया, इंटू वी ए अपॉन वी बी भी तो सिमिलरली 2 बनेगा, और फिर एन ए अपॉन एन बी, चलो वो तो हमको निकालना है, कीप इट एज इट इज, इंटू टी ए अपॉन टी बी भी तो 2 ही थे ना. तो ये 2 अगर कैंसिल कर दो दोनों तरफ से, तो यहाँ पे हमको एन ए अपॉन एन बी कितना बनेगा, 2:2. वो भी 2 बनेगा, मतलब 2:1. That is going to be the answer. Okay, so ratio of number of molecules in A and B is going to be 2:1. Okay, चलो आगे बढ़ो. A gas in a cylinder is at a pressure P. If masses of all molecules are made 1/3 of the original value and their speeds are doubled, then find the resultant pressure. अब देखो masses of each molecule is made 1/3 and speeds, उनके जो speeds है वो हमने डबल कर दिए, तो उससे उनका रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा वो हमको पूछा है. सोचो ये जो है प्रेशर का जो फॉर्मूला है कौन सा हम यूज करेंगे अभी यहाँ पे बताओ. प्रेशर के 3 फॉर्मूले हमारे पास है.
लेकिन उसमें से एक ही फॉर्मूला है जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है और मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल भी है। 1/3 n m अपॉन V v इंटू सी आर एम एस स्क्वायर, square. बराबर है। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो देखो अभी पहले जो गैस का प्रेशर था वो हम P मान लेते हैं, और पहले जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे ये N मान लेते हैं, और पहले जो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल था वो भी स्मॉल m मान लेते हैं, और पहले ओरिजिनल वॉल्यूम जो भी था वो भी मान लेते हैं, और पहले जो आरएमएस स्पीड था वो भी सी आरएमएस मान लेते हैं। ठीक है, अभी बाद में जो किया उसके हिसाब से वो बनेगा P डैश इज इक्वल टू 1/3 ऑफ n डैश m डैश b डैश एंड सी आर एम एस डैश का होल स्क्वायर। समझा ठीक से? ये सब नए वैल्यूज है, तो नए वैल्यूज के बीच में भी वही रिलेशनशिप होगा जरूर। बट अभी मुझे बताओ n डैश के बारे में क्या बोला है उन्होंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज किए क्या? देखो ठीक से, a gas in a cylinder is at pressure P if masses of all molecules are made 1/3 and their original value and the speeds are double। तो क्वेश्चन में से किधर भी हमको ये पता नहीं चल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू बी द सेम। ओके, दूसरी बात देखो ठीक से, masses of all molecules are made 1/3 मतलब क्या? नया जो मास है ईच मॉलिक्यूल का, मतलब स्मॉल m डैश, वो ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से 1/3 होगा। ये बात समझ में आई ठीक से? न्यू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। और दूसरी बात ये है कि आरएमएस वेलोसिटी जो है वो डबल किया, तो इसका मतलब सी आरएमएस डैश मतलब न्यू वैल्यू ऑफ आरएमएस वेलोसिटी इज गोइंग टू बी डबल्ड ऑफ आरएमएस वेलोसिटी ओरिजिनल, तो 2 टाइम्स ऑफ सी आरएमएस। ये समझा ठीक से? और वॉल्यूम के साथ कुछ किया है क्या, चेक करो। गैस इन सिलेंडर बोला है ना उन्होंने, तो सिलेंडर तो चेंज किया ही नहीं, तो इसलिए सिलेंडर सेम है, मतलब वॉल्यूम इज गोइंग टू बी द सेम, तो v डैश इज गोइंग टू बी सेम एज v ओनली। अभी ये सब वैल्यूज अगर हम इसमें डाल देंगे तो हमको मिलेगा p डैश इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज इनटू n डैश के बदले क्या आएगा, n आएगा, m डैश के बदले 1/3 ऑफ m आएगा, अपॉन v डैश के बदले तो v आएगा, और CRMS के बदले 2 टाइम्स ऑफ CRMS डैश के बदले 2 टाइम्स ऑफ CRMS आएगा, और उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और वो अगर करेंगे तो हमको इसमें से मिलेगा, देखो ठीक से, 1/3 kept as it is, and this 1/3 will be kept in front, तो यहाँ पे उसको हम डाल देंगे 1/3 as it is into n as it is, m as it is, upon v as it is into 2 टाइम्स CRMS का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बनता है 4, और इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 4 CRMS का स्क्वायर। ओके, अभी इसमें इसको अगर थोड़ा अगर रीअरेंज करेंगे ना, तो देखो ठीक से, ये 1/3 यहाँ पे ऑलरेडी है हमारे पास, n भी है, m भी है, v भी है, और CRMS स्क्वायर भी है। तो अगर इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हम लिख सकेंगे इसको इस तरह से, p डैश इज इक्वल टू, जो न्यू प्रेशर हमको मिल रहा है वो 1/3, अच्छा एक मिनट, इसमें से जो है ना ये 4 और 1/3 यही तो एक्स्ट्रा है ना, बाकी सब तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसलिए उसको अगर 4/3 करके अगर सेपरेट लिखेंगे, ये 4/3 सेपरेट, और ब्रैकेट में 1/3 इंटू n m अपॉन v इंटू CRMS का स्क्वायर, अगर ऐसा लिख देंगे तो उसमें से ये जो पूरा है ना इसको हम P बोल सकेंगे। देखो इधर से यहाँ पे ऊपर में, यही तो हमारा P था ना, P क्या है हमारा, 1/3 nm अपॉन v इंटू CRMS स्क्वायर, वही तो आ गया इधर। तो उसको अगर बैक रिप्लेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, P डैश इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ P, नो डाउट। ओके, समझे ठीक से? सो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। Show that the RMS velocity of oxygen molecules is √2 times of that of the sulfur dioxide molecules at STP। देखो ठीक से, हमको क्या प्रूव करना है, RMS velocity of oxygen molecule, उसको हम बोल देंगे C1, चलेगा ना? C1 मतलब क्या है,
RMS velocity of oxygen molecules, और C2 को बोल देंगे RMS velocity of sulfur dioxide molecules. ओके, तो तो हमको प्रूव क्या करना है? C1 is equal to √2 times of C2, करेक्ट है? देखो इधर C1 is equal to √2 times of C2, ये हमको प्रूव करना है. अच्छा, C1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताओ? What is the formula for C1? Can you hear me? Root of 3RT upon M1, करेक्ट है? यहाँ पे M1 माना क्या है? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन. एंड व्हाट इज C2? It's going to be root of 3RT upon M2. देखो टेम्परेचर सेम दिया है ना, STP मतलब क्या? टेम्परेचर इज गोइंग टू बी द सेम, and hence we can say that this C2 is going to be equal to root of 3RT upon M2. Temperature is going to be the same, and now if we take the ratio, then C1 upon C2 becomes equal to what? Root of, अंदर में क्या बचेगा? 3RT upon M1 into इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट? ये उल्टा हो जाएगा, तो बचेगा M2 upon 3RT, करेक्ट है? जिसमें से 3RT कैंसिल हो जाएगा और बचेगा C1 upon C2 is equal to root of M2 upon M1. अब देखो ये बात तो हम सीधी बात बोल सकते हैं कि हमको ऑलरेडी पता है कि RMS वेलोसिटी, इस फॉर्मूला से हमको क्या पता चलता है? C is going to be equal to root of 3RT upon M, ये हमको पता है. तो हम बोल सकते हैं ना कि C is inversely proportional to root of M, राइट? अगर C inversely proportional to root of M है तो फिर RMS velocities का जो रेशियो है C1 upon C2 वो किसके बराबर बनेगा? इन मास के, मोलर मास के रेशियो के रेसिप्रोकल के रूट के बराबर बनेगा. तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे M1 upon M2 अगर मोलर मास का रेशियो है तो उसको उल्टा करने का पहले और उसका रूट भी लेने का इधर, तो इसलिए यहाँ पे M2 upon M1 आ जाएगा. तो सेम रिजल्ट व्हिच वी हैव प्रूव्ड हियर. तो यहाँ पे जो हमने रिजल्ट प्रूव किया जितना सब करके, तो वही रिजल्ट हमको यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा है. तो अभी ये डायरेक्ट रिजल्ट अगर यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? अच्छा, तुमको पता है मोलर मास किसका कितना होता है? ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है बताओ फटाफट? 32. वेरी गुड. एंड बिकॉज ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, लेकिन O2 होता है ना ऑक्सीजन में, इसलिए वो 32 हो गया. और सल्फर डाइऑक्साइड का बताओ, मतलब SO2, राइट? तो सल्फर का अकेले का ही 32 है, किसको पता है? और ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 मिलके 32 बनता है, जो 64 बनेगा. 64 समझा कैसे? तो 64 अगर हम डाल देंगे यहाँ पे तो ये बनेगा C1 upon C2 is equal to root of 32 upon 64. जिसको कैंसिलेशन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा. और उससे भी आगे जाके अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो देखो C1 upon C2 becomes equal to 1 upon root 2, right? If we multiply it by this cross multiply, so root 2 times of C1 is going to be equal to C2. मतलब ही क्या? C2 is equal to root 2 times of C1. यही तो था हमको प्रूव करना. That is we want to prove. Show that the RMS velocity of oxygen molecules is root 2 times of sulfur dioxide molecules at STP. चलो आगे बढ़ो. The temperature, at what temperature is the oxygen molecules have the same RMS speed as helium molecules at STP? मतलब कौन से टेम्परेचर पे कौन से टेम्परेचर पे ऐसा होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आरएमएस वेलोसिटी सेम बनता है जितना हीलियम मॉलिक्यूल्स का एसटीपी पे होता है? मोलर मास वैसे दिए है, हमको भी पता है ऑलरेडी. तो देखो देखिए यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, लेट अस टेक C1. नहीं ये है कौन है?
Let us take C1, M1 and T1 be the RMS velocities, molar mass and temperature for oxygen molecule. चलेगा? ऑक्सीजन के लिए 111 रिजर्व करेंगे और C2, M2 and T2 will be the RMS speed, molar mass and temperature for helium molecules. Okay? हीलियम के लिए 2 रिजर्व रखेंगे. तो मुझे बताओ पहले, सबसे पहले C1 के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? रूट ऑफ 3RT/m. इसमें यहाँ पे सिर्फ T1 डालना है और M1 डालना है बस. और C2 के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? C2 is QT रूट ऑफ 3RT2/m2. करेक्ट है? What they have given here is that, see, at what temperature the oxygen molecules have same RMS speed as that of the helium molecules. तो same का मतलब क्या होता है? RMS speed are going to be the same. We want that C1 to be equal to C2. C1 और C2 हमको equal होना expected है. वैसा टेम्परेचर हमको निकालना है. तो अगर हम यूज करेंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा C1 के बदले आएगा रूट ऑफ 3RT1/m1 which is going to be equal to root of 3RT2/m2. और अगर अभी स्क्वायर रूट ला देंगे तो वो मिल जाएगा हमको सिंपली 3RT1/m1 which is going to be equal to 3R into T2/m2. 3R को भी अगर उड़ा देंगे तो बचेगा सिंपली T1/m1 is equal to T2/m2. But don't forget what is T1, M1 and T2, M2. देखो ऑक्सीजन का जो भी है वो M1 और T1 है और हीलियम का M2 और T2 है. तो देखो अभी यहाँ पे ये जो मोलिकुलर मास जो उन्होंने दे रखा है ऑक्सीजन का वो कितना दिया है? 32. तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर मास है उसको हम M1 बोलेंगे ना इधर. तो इसलिए M1 के बदले हमको क्या डालना होगा? 32. So we have to put this M1 as 32. And what about M2? हीलियम का जो मोलर मास है वो 4 दे रखा है. So let us put this M2 as 4. And now what about this temperature? T1 दिया है, T2 दिया है. पढ़ो एक बार ठीक से. At what temperature the oxygen molecules will have same velocity as helium molecules at STP? मतलब क्या? हीलियम molecules का जितना STP पे velocity है उतना ऑक्सीजन का कौन सा टेम्परेचर पे होगा? मतलब ऑक्सीजन का टेम्परेचर निकालना है, मतलब T1 निकालना है और दिया हुआ क्या है? T2 दिया हुआ है. तो T2 is given to be STP. STP मतलब कितना टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. मतलब भी वो बन गया 273 केल्विन. Okay, and T1 is going to be found out. T1 हमको चाहिए. So just put these values here and get the answer. तो हमको मिलेगा T1. तो T1 के बदले आ जाएगा T1 only. M1 के बदले आ जाएगा 32 here, which is going to be equal to T2 के बदले 273 और M1 M2 के बदले 4. अब ये 4 के टेबल में तो है ना 32. तो कैंसिल करो उसको. 4 1 जा 4 8 जा. And if we cross multiply here, then we get this value of T1 to be equal to 273 multiplied by 8, which is simply 8 3s are 24. Carry 8 7s are 56 plus 2 58 and 5 carry 16 plus 5 21. Okay, 2184 Kelvin. Okay, next. Compare the RMS speeds of hydrogen molecules at 120 degrees Celsius and the RMS speed of oxygen molecules at 20 degrees Celsius. Given that molar mass, तो वैसे भी हमको पता है. चलो उनको तो देखो ठीक से. We have to compare. Compare मतलब क्या? रेशियो निकालना. तो हमको C1/C2 निकालना है. C1 का फॉर्मूला हमारे पास है रूट ऑफ 3RT1/m1 और डिवाइडेड बाय दूसरा C2, उसका वैल्यू है 3RT2/m2. लेकिन यहाँ पे याद रखो 111 मतलब हाइड्रोजन और 222 मतलब ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये बन गया M2. जिसमें से अभी देखो ये जो 3R है कैंसिल हो जाएगा और रूट कंबाइन हो जाएगा
और रूट के अंदर क्या बचेगा, देखो ठीक से, T1 ये T1 by M1, तो ये T1 by M1 एज इट इज, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाके वो उल्टा हो जाएगा, तो वो बन जाएगा M2 by into by T2। T2. ओके, तो अभी डाल दो वैल्यूज सभी यहाँ पे। तो T1 मतलब कितना है, T1 मतलब कौन, हाइड्रोजन ना, तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर कितना है 127 डिग्री सेल्सियस, देखो इधर, तो 127 डिग्री सेल्सियस बोले तो 127 प्लस 273, 73 Kelvin. तो कितना आएगा 400 केल्विन। Yeah. ओके, तो ये डाल दिया हमने 400 T1 के बदले अपॉन M1 मतलब हाइड्रोजन का मोलर मास जो कि 2 होता है, वैसे भी हमको पता है, उन्होंने भी देख रखा है 2। फिर वापस M2 जो कि मोलर मास ऑफ दूसरा कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का तो 32 होता है, तो तुमको पता है ऑलरेडी, ये 32 यहाँ पे आएगा। और T2 मतलब क्या, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मच इट इज 27 डिग्री सेल्सियस ओनली, तो 27 मतलब कितना हो गया, 27 प्लस 273 अगेन विच इज गोइंग टू बी 300 केल्विन, सो हियर इट इज 300 केल्विन। अभी यहाँ पे दो जीरोस कैंसिल हो गए, बाकी 2 1 जा 2 2 जा, तो बचेगा रूट ऑफ 2 into 32 मतलब हो गया 64, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 3, जो बनेगा 64 का रूट 8 और 8 is to root 3, that is going to be the answer. चलो next 17th one, the kinetic energy of, find the kinetic energy of 5 liter of gas at STP given standard pressure is 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square। तो हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है गैस का, 5 लीटर गैस का, ठीक है। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, याद है अभी हमने लिख के दिया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज गिवन बाय 3/2 PV, याद है, इसको ही हमने NKT यूज किया था और NRT भी रिप्लेस किया था कि नहीं, 3/2 into PV। प्रेशर कितना दिया हुआ यहाँ पे, प्रेशर इज गिवन टू बी 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square, it's a standard unit so don't convert it। but वॉल्यूम का क्या, वॉल्यूम दिया है क्या, 5 liters. 5 liter, that is the volume given here actually। अभी लीटर स्टैंडर्ड यूनिट है ना या नहीं है, लीटर स्टैंडर्ड यूनिट है या नहीं है, ऐसा यूनिट है क्या नहीं है लीटर वॉल्यूम का, अभी तो डिस्कस किया था हमने, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो 5 into 1 liter equal to how many meter cube, 10 raised to 10 minus. national. 1 liter equal to, होंगे क्या इतना जल्दी, बोलो जल्दी, 1 liter equal to how many meter cube, 1 meter to minus 3. 1 liter equal to 10 raised to minus 3 meter cube, -3 meter cube. तो यहाँ पे 10 raised to minus 3 आएगा, 5 into 10 raised to minus 3 meter cube, ये हो गया वॉल्यूम। अभी डालो उसको यहाँ पे, तो देखो क्या बनेगा, 1.013 into 10 raised to 5 and multiplied by 5 into 10 raised to minus 3। ओके, 10 का पावर तो हम आराम से हैंडल कर लेंगे, 10 raised to 2 बचेगा इधर, करेक्ट है, 10 raised to 2। ओके, बट बाकी यहाँ पे ये जो है 5 3 15 अपॉन 2 into 1.013 बचा रहेगा। अभी इनको मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे 7.5 और 1.013 as it is into 10 raised to 2 as it is। तो करो कैलकुलेशंस, 7.5 into 1.013, how much it is, 7.5979, okay, 7.597
7.5979. 75, sorry. 7.5. Into 10 raised to 2, which makes it as 759.75. प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल we can say. So 0.7597. by 2 PV. प्रेशर का यूनिट और वॉल्यूम का यूनिट. वॉल्यूम 5 लीटर ही है ना. हाँ, तो लीटर का तो कन्वर्जन हमको पता है 10⁻³ होता है, तो 10⁻² बचेगा. नहीं, वो रॉन्ग है. क्या देखो, इतना छोटा कहाँ से आएगा? ये प्रेशर का ऑर्डर जो देखेंगे ना, प्रेशर जो है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो 10⁻³ है, उसको ही मिलके 10⁻² आ रहा है. तो 100 के रेंज में तो होना ही चाहिए, वो 100 के तो ऊपर ही होना चाहिए. ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी 759.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, करेक्ट. तो आगे Sir. listen carefully. This is now the entertaining going on. सभी वीडियो ऑन करो अपने. चलो फटाफट. पता नहीं. Switch on the videos fast, all of you. एक भी बड़ा बगैर वीडियो का नहीं लिखना चाहिए मेरे को. पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी 18th वाला क्वेश्चन नंबर 18. अभी हमने फॉर्मूले देखे थे. देखो सभी काइनेटिक एनर्जीज के लिए याद है. कैलकुलेट द एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल per kilogram per molecule of gas at oxygen gas at 127 degree Celsius. Given that molar weight of oxygen is 32, वो वैसे भी हमको पता है. R is 8.31 and Avogadro's number is given. Okay, सब पता है हमको. तो देखो अभी ठीक से काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो पर किलोमोल. What is the formula for kinetic energy per mole? याद है? देखो अभी हमने देखा, लिख लिया था. काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी हैपेंस टू बी 3/2 PV, जिसको हम 3/2 into nRT भी बोल सकते हैं, राइट? तो अगर हमको काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल चाहिए, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी अपॉन n हो गया ना, तो वो आ जाएगा सीधा 3/2 into RT सिंपली. करेक्ट है? 3/2 into RT. ओके, तो यहाँ पे 3/2 एज इट इज. अच्छा, ऐसा करेंगे आप पहले ना काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालेंगे, क्योंकि ये जो R है ना, R एक्चुअली जूल पर किलोमोल केल्विन में दिया हुआ है. तो फॉर दैट रीजन we'll try to find out the kinetic energy per mole first. Okay, forget about the kilomole. So first of all, we'll try to find out the kinetic energy per mole, which is going to be equal to 3/2 RT, where R is going to be 8.31 into temperature 127 degree Celsius. Convert करो इसको जल्दी. अभी हमने किया था 127 plus 273, it's 400, right? तो ये 400 बन गया. अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 200 जा, जो बनेगा 200 into 3 become 600. तो 600 into 8.31, करेक्ट है? इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ठीक से 600 into 8.31, sorry 8.13.
4986. नहीं, how much it is? 4986, right? 4986. Okay. तो ये बट अभी ये जूल में आएगा, लेकिन हमने ये क्या निकाला याद है? काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाला ना। अगर हमको काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल निकालना है तो मतलब ये 1 मोल का काइनेटिक एनर्जी है। अगर हमको 1 किलोमोल का काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो कितना आएगा? 10⁻². मोल बड़ा होता है, किलोमोल बड़ा होता है? ऑब्वियसली किलोमोल बड़ा होता है। तो 1 मोल का काइनेटिक एनर्जी अगर इतना है तो फिर 1 किलोमोल का काइनेटिक एनर्जी इसका किलो टाइम ज्यादा होगा कि नहीं? मतलब 1000 टाइम ज्यादा होगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल विल बी एक्चुअली 4986 into 1000, मतलब 10⁻³ जूल्स ये आएगा। बट अगर हमको इसको 4.986 के फॉर्म में लेकर लिखना है तो वो बन जाएगा into 10⁻6 joules. Okay, so this will become the kinetic energy. Okay, and बाकी दोनों जो है वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से। पर किलोग्राम मतलब क्या हो गया? वो पर यूनिट मास हो गया ना। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द गैस, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था हमने? अभी हमने डिराइव किया था 3/2 RT upon m naught, where m naught stands for molar mass, right है? तो अभी ये 3/2 into R, which is 8.31431 only, into temperature, which is 400, upon molar mass, which is going to be 32. But don't forget that it is in kilogram. 32 जो होता है ना molar mass ग्राम में है, but we want to convert it into kilogram. So उसके लिए यहाँ पे 32 into 10⁻³ आएगा। एक्चुअली देखिए वैसे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे R जो है ना वो भी पर मोल में ही दिया हुआ है। तो ठीक है, उसको रखो वैसे ही। तो इसका मतलब अभी देखो ये जो पूरा वैल्यू है ऊपर का वो तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है ना ऊपर यहाँ पे। ऐसे ये क्या है? 3/2 RT तो हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, 4986 ये उसका वैल्यू है। तो वो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे उसके बदले तो वो बन जाएगा 4986 and that is to be divided by 32 only. Let's do that. 4986 divided by 32. 165.2. divided by 80 इधर कितना है? 165.2. फिर से बोलो। 155. एक जन बोलो ना. ठीक है, जो भी है 165.2. 165.4 165.2. ओके ठीक है। तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम। और उससे आगे जाके काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? पर मॉलिक्यूल के लिए है 3/2 kB/t। हाँ. और ये भी हमको पता है ऑलरेडी kB कितना होता है? याद है? R/N0 मतलब ही kB होता है, अवोगाड्रोस नंबर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन अवोगाड्रोस नंबर मतलब ही kB, तो इनटू T एज इट इज। अभी वापस यहाँ पे 3/2 RT का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वो है 4986, राइट? और उसको अगर डिवाइड करेंगे N0 मतलब क्या? अवोगाड्रोस नंबर, तो वो बन जाएगा 6.023 into 10⁻23। या चलो 2 ही बोला है उन्होंने, तो 6.02 into 10⁻23 ये अगर करेंगे तो
तो ये 10⁻23 तो चला जाएगा ऊपर और बनेगा 10⁻−23, नो डाउट। बट ये जो है ये हमको करना पड़ेगा। तो वो कितना आ रहा है देखो से, ये रेशियो निकालो फटाफट। 4986 डिवाइडेड बाय 6.02, 8 to 8.2. 8 to 8.2 into 10⁻⁻23। इसको ही हम लिख सकते हैं 8.282 into 10⁻⁻21। करेक्ट है, पॉइंट 2 डिजिट इस तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पे 10⁻⁻23 के बदले 10⁻⁻21 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये बन गया हमारा। ये हमने 19 तक सम सॉल्व किए हैं, सॉरी 18 तक। तो बाकी जो इसके आगे के जो सम्स है वो रेडिएशन पे बेस्ड है। ओके, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड जो सम्स है वो हमने आज सॉल्व किए कंप्लीटली। बाकी रेडिएशन के ऊपर के जो सम्स है वो हम कल करेंगे। और कंपलसरी अभी आज मैं एक शीट डालने वाला हूँ, उसके अंदर जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो न्यूमेरिकल्स है उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, तो वो सभी को सॉल्व करके कल ही सबमिट करना होगा। और अभी कल के लिए कल का ये जो शीट है ये मतलब ये सॉल्व करके जो सबमिट करने का जो बात है वो उस पे मत करो, व्हाट्सएप पे मत करो। मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा ऐप में, तो उस लिंक पे आपको वो सबमिट करना है। ऐप के अंदर ही आपको लिंक मिल जाएगा उसका सबमिट करने के लिए। तो वो लिंक पे आके आपको सबमिट करना है, सभी जो होमवर्क के फाइल्स है वो उसमें सबमिट करना है। और हो सके तो एक थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज करो। देखो अब आप जो होमवर्क सबमिट करते हो तो उसके अंदर सब इमेजेस वगैरह होते हैं, फोटोज निकाल के तुम इमेजेस मुझे सेंड करते हो, बराबर है ना? लेकिन उसमें थोड़ा सा एक ऐसी बात हो सकती है क्या कि अगर पीडीएफ में तुम कन्वर्ट करके उसको फिर सेंड करो, क्योंकि आपको कैम स्कैनर करके एक ऐप वगैरह मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, जिसको यूज करके आप जैसे ही फोटोज निकालते हो तो अगर 10-12 फोटो आपने निकाल लिए तो उसको तुम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। और वो पीडीएफ फाइल फिर अगर सेंड करो तो वो थोड़ा सा एक ही फाइल में सभी रहेंगे ना वो। नहीं तो इमेजेस कैसा होता है, एक इमेज डाला, दूसरा इमेज डाला, तीसरा डाला, फिर वो किसका कौन सा इमेज किसका है, उसके बाद कौन सा है वो कुछ पता नहीं चलता। और कोई तो उसमें नाम भी नहीं डालते, ऐसे ही भेज देते डायरेक्ट, जैसे कि बहुत फेमस है, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ मत करो। और तो कल से क्या है कि थोड़ा सा पीडीएफ फाइल कन्वर्ट करके फिर भेजो। चलो ठीक है, अगर पीडीएफ फाइल कन्वर्ट करना अगर नहीं भी पॉसिबल हुआ तो भी वो ऐप में जो आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उसके अंदर भेजो, ठीक है? मैं उसके ऊपर नाम डाल के रखूंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का होमवर्क करके, ठीक है? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के न्यूमेरिकल्स करके तो उसके ऊपर डाल के वो सबमिट करो। ओके, तो ठीक है, तो ये लेक्चर फिर अभी मैं सब खत्म करता हूँ। अभी भी कैमरा ओपन नहीं किए सबने ना, पता नहीं क्या जॉब वगैरह देखते रहते हो या पता नहीं कुछ, नहीं कैमरे बंद करते हैं क्या? नहीं सर, नहीं सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी थैंक यू सो मच सर। अभी कितने बज रहे हैं? 6:20 तो इधर ही हो गए। सर अभी 5 मिनट में लेक्चर। डायरेक्ट स्टार्ट करो क्या फिर? संदीप सर तो वैसे भी ज्वाइन हो गए ऑलरेडी। रुको सर। ठीक है, 5 मिनट ले लो ब्रेक।